Good evening. A couple of days back, we studied concept of adjective and adverb. We have some questions to be solved by all of us. So let us have a look at all these questions and let us solve. Question number one. Question number, Rahul is too obstinate to be effectively in his work. In this question, ये term effectively जो है, इसका यूज किसके लिए हो रहा है? राहुल काफी ऑब्स्टिनेट है कि वह अपने काम में प्रभावशाली नहीं हो सकता है. Effective means प्रभावशाली. At the moment we look at this word effectively and we observe that yes the word ends with ly. इसको इस क्वेश्चन को इस शब्द को देखते हैं और देखते हैं कि ये ly से end हो रहा है. We have realized that yes this is adverb. And we have already discussed that adverb is used for a verb or an adjective. Adverb का यूज किसके लिए होता है? Adjective या verb के लिए. अब इस टर्म का यूज इस क्वेश्चन में किसके लिए यूज हो रहा है? तो we realize that yes, this effectively word is being used for the word Rahul, and Rahul here is noun. और noun के लिए कभी adverb का यूज होगा ही नहीं. So in noun के लिए क्या यूज होता है? Adjective. We always use an adjective for a noun or a pronoun. So this effectively word should not be used with this word Rahul, I mean noun. So it has got to be an adjective. So इसको adjective होना जरूरी है और adjective होने के लिए ly को हटा दो तो क्या हो जाएगा? Effectively नहीं, effective. इसको क्या कर देंगे? Effective. Effective. So in question number 1, number third person A has got an error. Question Rahul down here. Now question number 2. He admitted to me that he had not adequate prepared for the test. ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि वह एडमिट किया मुझसे कि he had not adequately prepared for the test, कि यानी वह इस टेस्ट के लिए adequate means पर्याप्त, वह इस टेस्ट के लिए पर्याप्त रूप से तैयार नहीं था. यानी ये जो एडिक्वेट शब्द का यूज हो रहा है, एडिक्वेट शब्द का यूज हो रहा है क्या? वह पर्याप्त रूप से तैयार नहीं था. It means this word adequate has been used for the word prepared, जो कि V3 है. यानी इस एडिक्वेट की यूज का ये एडिक्वेट टर्म का यूज हो रहा है किसके लिए? प्रिपेयर्ड के लिए. प्रिपेयर्ड के लिए. प्रिपेयर्ड एक V3 है और V3 को क्या चाहिए? एडवर्ब. और एडवर्ब बनने के लिए क्या लगना चाहिए? वी शुड यूज, इसमें ly का यूज होना चाहिए जो कि नहीं है. इट मीन्स वन थिंग इज क्वाइट ऑब्वियस एंड इट दैट नो दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. एडिक्वेट नहीं, एडिक्वेटली चाहिए. चलिए, वी नीड इम्प्रूवमेंट. इम्प्रूवमेंट की जरूरत है इस सेंटेंस को. तो ऑप्शन नंबर 1 में आए. He admitted to me that he had not adequate prepared. इस had underline portion को improve करना है. इस तो was not adequate prepared. The once again the problems remain the same. The problems remains the same कि ये जो है prepared का ये adequate का use हो रहा है prepared के लिए. तो once again as we discussed earlier कि ये prepared V3 है, इसको adverb होना चाहिए, ly लगना चाहिए. तो ये भी तो V3 है, इसको एडवर्ब चाहिए, नहीं है, ये भी नहीं होगा. नाउ had not adequately prepared. तो ये prepare इज वर्ब और इस वर्ब के लिए यूज हो रहा है एडवर्ब. ये तो ठीक है, बट another problem crops up. The problem here is that yes, after had we never use V1, we use V3. Had it been V3 तो ठीक है भाई, सोचते कि हाँ we could have given a thought to this option. लेकिन had के बाद तो V3 है नहीं. The chapter is closed. Come to the next option. Has not adequately prepared. Yes. This is
This is prepared is V3 and adequately has already been used क्योंकि adequately का यूज हुआ है इस वर्ड के लिए and this word is V3 यह वर्ड V3 है तो V3 के लिए वर्ब के लिए एडवर्ब का यूज होना चाहिए जो एडवर्ब है तो this option seems to be correct but what is it another another rule of grammar stops us from going for this option because we have studied in our previous chapters in a sentence if a sentence consists of two or many clauses and if the first clause is in the past form the coming clauses have got to be in the past form तो इसमें तो कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर कंजंक्शन के पहले पहला क्लाउज पास्ट फॉर्म में है तो उसके बाद वाला क्लाउज भी पास्ट फॉर्म में होना चाहिए अनलेस एंड अनटिल इट इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ अगर ये यूनिवर्सल ट्रूथ न हो तब तक तो यहाँ पे है यहाँ पे हैड यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में हैज लगाएंगे तो फर्स्ट पोर्शन में तो पास्ट फॉर्म है तो सेकंड में हैज कैसे लगा सकते हैं नो नो दिस इज ऑल्सो नॉट अ करेक्ट आंसर देन आगे बढ़ते हैं दिस V3 is adjective and this adjective will show the mental and physical condition as we studied in the chapter concept of adjective and adverb तो ये क्या करेगा ये मेंटल और फिजिकल कंडीशन को बतलाएगा तो वह टेस्ट के लिए तैयार नहीं था ठीक है ये एडजेक्टिव है V3 अब यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करेगा द मोमेंट दिस प्रिपेयर्ड वर्ड V3 स्टार्ट्स वर्किंग एन एज एडजेक्टिव तो हम करेंगे क्या तो ये नॉन एक्शन का ये V3 है तो ये क्या करेगा नॉन एक्शन का सेंटेंस बन जाएगा अब नॉन एक्शन का सेंटेंस है तो है तो इज एम आर लगेगा ही था है तो वॉज वर्ड लगेगा ही एज पर रिक्वायरमेंट तो ये वॉज लगा भी हुआ है एट द सेम टाइम this adequately term has been used for prepared and this prepared is adjective और adjective के लिए adverb का यूज होता ही है prepared adjective है prepare adjective है और adjective के लिए adverb का यूज होता ही है तो यहाँ पर है भी अब ये नॉन एक्शन का सेंटेंस है तो वाज वर्ड लगा हुआ है इट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई सेज he had not adequately preparations तो ये प्रिपरेशंस जब कभी भी प्रिपरेशंस शन्स शन TION शन SION इन सभी से वर्ड इंड होता है व्हेन द वर्ड ends with TION शन ये क्या कहलाता है नाउन तो यहाँ पे है प्रिपरेशंस अब ये प्रिपरेशंस क्या हो गया ये नाउन हो गया क्योंकि शन से शन शन TION से नाउन्स के लिए तो ये तो नाउन है अब इस नाउन के लिए क्या यूज हो रहा है यहाँ पर एडेक्वेटली अब नाउन के लिए एडेक्वेटली यानी एडवर्ब तो यूज हो नहीं सकता है तो दिस इज आल्सो रॉन्ग द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज many students waits anxious at the this is wrong at the college at the college get to know the result अब this is misspelled please correct it THE so many students waits anxious at the college now many students waits तो होगा नहीं because we have studied tense and when this जब ये noun प्लूरल है तो इस वर्ब को क्या होना चाहिए इसको भी प्लूरल होना चाहिए यानी इसको होना चाहिए वेट वेट्स तो होना नहीं चाहिए सो दिस सेंटेंस इज रॉन्ग एंड इट रिक्वायर्स एन इम्प्रूवमेंट चलिए देखते हैं
We have got 5 options. Which one is correct one? तो स्टूडेंट्स वेट एंक्शस। अच्छा अच्छा, तो स्टूडेंट्स ये तो प्लूरल है एंड दिस वर्ब इज आल्सो प्लूरल, क्योंकि वर्ब में जब एस लगाते हैं तब वो सिंगुलर बनता है, तो ये तो एस नहीं लगा हुआ यानी कि प्लूरल है। तो स्टूडेंट्स वेट करेक्ट, but at the same time we should also think over this point, we should brood over this, we should contemplate over this point that yes, कि हम लोगों को इस बात पर भी विचार करना होगा कि ये जो एंक्सस टर्म है, चिंता एंक्सस टर्म है, इस ये शब्द किसके लिए यूज हुआ है। when we brood over this matter, this point, we shall come to know that this anxious term, जब हम लोग सोचेंगे तो ये पता चलेगा ये anxious term का यूज हुआ है वेट के लिए। वेट यहाँ क्या है? वर्ब, इंतजार करना। और वर्ब जब ये है तो इस टर्म के लिए ही यूज हुआ है एंक्शस। तो वर्ब के लिए हमेशा क्या यूज होता है? एडवर्ब। और एडवर्ब बनाने के लिए वर्ड में क्या लगाते हैं? एलवाई। यानी कि ये एंक्शसली होता तो ठीक होता, जो कि अभी नहीं है। इट मीन दिस इज अ रॉन्ग ऑप्शन। नो, लेट्स नॉट गो फॉर दिस। अब दूसरा देखते हैं, स्टूडेंट्स वेटिंग एंक्शसली। तो ये एडवर्ब की बातें तो बाद में करेंगे। मेनी स्टूडेंट्स वेटिंग, भाई ये तो कोई कंटिन्यूअस टेंस का नहीं है, neither present continuous tense nor past continuous tense, ये तो कोई continuous tense का है नहीं। had it been either in the present continuous tense or past continuous tense, it would have required is, am, are और was, were। अगर ये past present perfect continuous tense होता है तो has been, had been लगा की जरूरत होती या लगा होता। तो यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो ज्यादा बात ही करना बेकार है, क्योंकि many सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स के बाद बिफोर नहीं आता है। नो, this is also wrong. Now come to the next option. A student waits anxiously. तो student is singular. Student, student क्या है ये? Student is singular and singular के साथ singular verb भी लगाते हैं, और verb में जब s लगाते हैं तो singular होता है। तो this seems to be a correct option. ये सही लग रहा है। singular noun है, singular noun, फिर ये singular verb, और इस एंक्शस का यूज इस वेट्स के लिए ही किया गया है, यानी वर्ब के लिए। तो एडवर्ब होना चाहिए, जो एलवाई लगा हुआ है तो एडवर्ब है ही, तो इसको सही होना चाहिए। आई थिंक दिस वन इज द करेक्ट, बट व्हाट इज इट? टू आवर ग्रेट डिसमी, दिस इज ऑल्सो नॉट अ करेक्ट ऑप्शन। लेकिन सॉरीली ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। भाई ऐसा क्या हो गया? बिकॉज दिस इज मेनी, और मेनी के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है। तो स्टूडेंट नहीं, दिस स्टूडेंट हैज गॉट टू बी स्टूडेंट्स। इसको हमेशा स्टूडेंट्स होना ही होगा। इट विल हैव टू बी स्टूडेंट्स। इसको स्टूडेंट्स होना ही होगा। ऐसा क्यों? बिकॉज मेनी इज फॉलोड बाई अ प्लूरल नाउन एंड प्लूरल वर्ब। नाउ मेनी के बाद हमेशा प्लूरल, मेनी के बाद हमेशा प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब आता है, यानी ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स तो है नहीं। So this is also wrong answer. Now come to the D option. Many is many. I, this time I shall go ahead very carefully. Many is there. This portion has to be improved. तो many के बाद students plural है। Now this is V2, यानी ये verb है, और इसी verb के लिए यूज हुआ है ly से in है, तो यानी कि ये एडवर्ब है। तो मेनी के बाद प्लूरल नाउन V2 एक्शन, यानी सिंपल पास्ट टेंस। दिस इज द करेक्ट आंसर। मेनी के बाद प्लूरल नाउन, सिंपल V2, और V2 के लिए वर्ब के लिए एडवर्ब, और सिंपल पास्ट टेंस ये सेट हो गया। सो आई थिंक नॉट, दिस इज द करेक्ट आंसर।
D is the correct answer. The next question says, census reports in India have voiced concern over the decline trend in sex ratio with each passing year. अब ये कहता है कि सेंसस रिपोर्ट्स जो हिंदुस्तान में है, सेंसस रिपोर्ट जो इंडिया में है, हैव वॉइस्ड, वॉइस मीन्स आवाज उठाना, तो ये क्या है? दिस इज वर्ब V3, यानी ये तो वर्ब है, वर्ब। सेंसस रिपोर्ट्स इन इंडिया हैव वॉइस्ड कंसर्न ओवर द डिक्लाइन। अब सबसे पहली बात, कंसर्न का मतलब क्या होता है? कंसर्न मीन्स, कंसर्न मीन्स चिंता। अब ये क्या है? यानी वरी, ये क्या है? और ये क्या है? नाउन है। अब कंसर्न मीन्स चिंता, वी नीड अ नाउन। हम लोग को अभी वर्ब है, तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, तो वर्ब के बाद फिर वर्ब कैसे आएगा? दिस इज रॉन्ग। और ये कहना क्या चाह रहा है कि सेंसस है, चिंता की चिंता जताया है ओवर द डिक्लाइन ट्रेंड इन सेक्स रेशियो विद ईच पासिंग है। प्रत्येक प्रत्येक बढ़ते हुए वर्ष में जो सेक्स रेशियो का जो ट्रेंड पे में जो गिरावट है, डिक्लाइन मीन्स गिरावट, प्रत्येक बढ़ते हुए, प्रत्येक गुजरते हुए वर्ष में जो सेक्स रेशियो में जो गिरावट है, गिरावट डिक्लाइन गिरावट है, उस पर चिंता जो है व्यक्त किया है। अब ये जो है, यानी कि ये तो वर्ब नहीं, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है। वॉइस के मीन्स आवाज उठाना, बोलना, व्यक्त करना, तो वर्ब है ना ये, तो वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट तो नाउन या प्रोनाउन नहीं हो सकता है, तो ये वर्ब के बाद वर्ब कैसे आएगा? खत्म। नो, ज्यादा बात ही नहीं करना है। नाउ क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2, वॉइस्ड कंसर्न ओवर द डिक्लाइंड। वेरी गुड। अब क्या है कि हैज हैव के बाद V3, ठीक है, कंसर्न यानी V3, ये नाउन यानी चिंता, कंसर्न, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, तो ये भाई चिंता ऑब्जेक्ट होगा ही। ओवर द डिक्लाइंड, ओवर द डिक्लाइंड ट्रेंड। अब डिक्लाइन ट्रेंड, तो V3 जो है एडजेक्टिव का भी काम करता है। V3 ये एडजेक्टिव का काम करता है, और एडजेक्टिव के बाद ये जो ट्रेंड है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। तो V3 जो एडजेक्टिव है, उसके बाद जो नाउन आया, बिल्कुल ठीक, नाउन के पहले एडजेक्टिव ही आता है। बट द प्रॉब्लम हियर इज दैट वी हैव स्टडीड इन आवर concept of adjective and adverb, उसमें वी स्टडी देयर कि V3 भी एडजेक्टिव का काम करता है एंड V4 भी एडजेक्टिव का काम करता है। V3 एंड V4 बोथ बोथ ये दोनों एडजेक्टिव का काम करता है। तो अब दोनों में डिफरेंस हम लोग समझे थे। V3 जो सब ऑलरेडी अफेक्टेड, लेकिन जो किसी चीज से प्रभावित हो, किसी चीज से प्रभावित हो, लेकिन V4 में क्या है, या प्रभाव से गुजर रहा हो। और V4 में क्या होता है कि वो प्रभाव को क्रिएट कर रहा हो, प्रभाव उत्पन्न कर रहा हो। याद रखना, V3 एडजेक्टिव का काम करता है, यानी शरीर मन की अवस्था बताएगा, यानी कि जो ऑलरेडी किसी प्रभाव से प्रभावित हो या प्रभाव से गुजर रहा हो, तब V3 का यूज करेंगे एडजेक्टिव के रूप में, तब V3 के रूप में यूज करेंगे। लेकिन अगर अगर इफ द वर्ड इज क्रिएटिंग एन इफेक्ट, तो V4 का यूज करेंगे। वर्ब ऑब्जेक्ट, ये भी एडजेक्टिव भी है, लेकिन ये एडजेक्टिव क्या है? वी डोंट नीड एन एडजेक्टिव इन द V3 फॉर्म,
क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है विद ईच पासिंग ईयर, प्रत्येक बढ़ते हुए आगे बढ़ते हुए वर्ष में, गुजरते हुए वर्ष में सेक्स रेशियो घटता हुआ ट्रेंड, सेक्स रेशियो का घटता हुआ क्रम, यानी इट इज क्रिएटिंग इफेक्ट। यानी वी3 तो चाहिए, एडजेक्टिव तो चाहिए, बट इन द वी फॉर फॉर्म। तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन सेज voiced concerned, voiced concerned over the declining, यानी इफेक्ट, यानी एडजेक्टिव तो चाहिए लेकिन बी फॉर फॉर्म में, यानी सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। And so far as option D is concerned, was concerned over the declining, फिर भी थ्री, जब ये भी है तो ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट ये भी कहाँ से आ गया, तो नो, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question says, it is unlikely that you will find a more qualified and experienced candidate than Mr. Prasad for the post of president. Now, unlikely, it is unlikely, जस्ट आई डाउट कि अनलाइकली, ये जो अनलाइकली टर्म है ये क्या है, दिस वर्ड इन्स विद एल वाई। अब द मोमेंट ये वी हैव अंडरस्टूड दैट यस द वर्ड, जो शब्द एल वाई से इंड होता है, समाप्त होता है, उसको हम लोग एडवर्ब कहते हैं। बट एट द सेम टाइम वी हैव ऑल्सो स्टडीड मेनी ऑफ द वर्ड्स आर देयर, बहुत सारा शब्द ऐसे हैं जो एलवाई से तो इंड होता है, समाप्त होता है, लेकिन दे आर नॉट एडवर्ब, दे आर एडजेक्टिव। एग्जांपल्स आर देयर miserly, cowardly, likely, friendly, manly, womanly, all these things are given in the video, you can watch them। तो ये unlikely एडजेक्टिव है। तो इतना क्यों हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि ये इस अनलाइकली का यूज किसके लिए हुआ है, इस अनलाइकली का यूज हुआ है इट के लिए। इट क्या है, प्रोनाउन, प्रोनाउन है, और प्रोनाउन के लिए क्या यूज होता है, एडजेक्टिव, बाय एट पर्सन इज ओके। चलिए, इट इज अनलाइकली दैट, ये तो ठीक है, इट इज अनलाइकली दैट यू विल फाइंड अ मोर क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट देन मिस्टर प्रसाद। यू विल फाइंड अ मोर क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट, आप बहुत ज्यादा क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस कैंडिडेट पाएंगे। तो ये क्या टर्म जो है, ये टर्म जो है कैंडिडेट तो है, लेकिन कैसा, क्वालिफाइड, यानी इस टर्म का यूज हुआ है कैंडिडेट की क्वालिटी बताने के लिए, यानी इसको एडजेक्टिव होना चाहिए, बाई वी3 है, यानी एडजेक्टिव। तो ठीक है, कैंडिडेट तो है, क्वालिफाइड के साथ साथ क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस। तो इसको भी तो ये भी तो इस टर्म का यूज भी हुआ कैंडिडेट के लिए, इसको भी एडजेक्टिव होना है, लेकिन ये तो भी है, वर्ब है, वर्ब है, लेकिन इसको भी एडजेक्टिव होना पड़ेगा। तो इस टर्म को भी एडजेक्टिव होने के लिए वी3 होना होगा, बिकॉज वी3 एडजेक्टिव का काम करता है। और इसको, ये दोनों वर्ड कैंडिडेट की क्वालिटी को, डिसक्वालिटी को बता रहा है। क्वालिटी और डिसक्वालिटी बताने वाले को एडजेक्टिव कहते हैं, तो उसके लिए वी3 चाहिए। तो ये तो वी3 है ही ऑलरेडी। अब एक्सपीरियंस को क्या कर दो, एक्सपीरियंस। सो द आंसर हियर इज second person. The latest study indicates possibly short of 5 lakh qualified engineers in the IT industry. ये सेंटेंस क्या कहना चाहता है कि लेटेस्ट स्टडी इंडिकेट करता है, क्या भाई इंडिकेट करता है, पॉसिबली शॉर्ट ऑफ 5 लाख क्वालिफाइड इंजीनियर्स इन द आईटी इंडस्ट्री। आईटी इंडस्ट्री में 5 लाख क्वालिफाइड इंजीनियर्स के संभावित कमी को करता है। अंडरस्टैंड, शॉर्ट हियर इज द वेरी टर्म, short here is, what is short, this short is adjective, short is adjective, और इसके लिए एडवर्ब भी यूज किया गया है एल वाई। तो लगता है कि ठीक,
लेकिन we don't need short, we need shortest. 5 लाख इंजीनियर्स की कमी, यानी आपको नाउन चाहिए, किसी का गुण नहीं बताना है। आपको यहाँ भी नाउन चाहिए, जबकि एडजेक्टिव है, यानी कि सेंटेंस इज रॉन्ग, सेंटेंस ये गलत है। तब क्या करेंगे, कम टू द, तब ये सेंटेंस नीड्स इंप्रूवमेंट। तो क्या, द लेटेस्ट स्टडी इंडिकेट्स द पॉसिबल शॉर्टेज ऑफ, तो शॉर्टेज ज्यादा की बात नहीं, ओ डबल एफ चाहिए ही नहीं, खत्म ये ऑप्शन। नाउ पॉसिबल शॉर्ट ऑफ, बाई short, when short is adjective it has got to be preceded by an adverb, होता है। और वैसे तो शॉर्ट एडजेक्टिव यहाँ चाहिए नहीं, हम लोग को एडजेक्टिव चाहिए नहीं, ये भी खत्म। नो, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, ये भी गलत। अब आ जाओ थर्ड पर, पॉसिबिलिटी ऑफ शॉर्टेज, पॉसिबिलिटी ऑफ शॉर्टेज ना, पॉसिबिलिटी ऑफ शॉर्टेज नहीं, द स्टडी डेटा इंडिकेट्स पॉसिबिलिटी ऑफ शॉर्टेज ना, ये भी नहीं। अब क्या करेंगे, अब पॉसिबल शॉर्टेज ऑफ, शॉर्टेज क्या हो गया, नाउन, पॉसिबल क्या हो गया, एडजेक्टिव, ए क्या हो गया, आर्टिकल। और हम लोग ड्यूरिंग आवर स्टडी वी emphasized on this point that article plus adjective plus noun। तब क्या करेंगे, द लेटेस्ट स्टडी इंडिकेट्स अ पॉसिबल शॉर्टेज ऑफ के पहले नाउन चाहिए भी था, शॉर्टेज नाउन है। द लेटेस्ट स्टडी इंडिकेट्स अ पॉसिबल शॉर्टेज ऑफ 5 lakhs रुपीज, 5 lakhs इंजीनियर्स इन द आईटी इंडस्ट्री, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। यानी कि आपका जवाब होना चाहिए, आपका जवाब होना चाहिए, योर आंसर मस्ट बी अ पॉसिबल शॉर्टेज ऑफ। 7 says, we are interested in purchasing the new laptop model since it has many features available in conventional computers. We are interested in purchasing, हम लोग इस हम लोग खरीदने में, किसी भी प्रीपोजिशन के बाद we always use before after any preposition, तो in is a preposition before, correct। चलो ठीक है, वी आर इंटरेस्टेड, हम लोग इस लैपटॉप मॉडल को खरीदने में, इन मन की अवस्था बताना है, हम लोग को रुचि है, और मन की अवस्था बताने वाला शब्द को कहते हैं एडजेक्टिव। V3 जो है एडजेक्टिव का काम करता है, तो हम लोग को यहाँ यूज करना चाहिए V3। हालांकि however we have also discussed that before also works an adjective, ये भी एडजेक्टिव का काम करता है, लेकिन ये बिफोर एडजेक्टिव का काम कब करता है, जब when it is creating some sort of effect, कोई प्रभाव उत्पन्न कर रहा है। लेकिन हम क्या है, हम तो ऑलरेडी प्रभाव, और भीतरी कब यूज करते हैं, जब प्रभावित ऑलरेडी हो चुका है, तो हम तो इंटरेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं इस लैपटॉप को खरीदने के लिए, यानी कि ऑलरेडी अफेक्टेड, इट मीन्स वी नीड एन एडजेक्टिव इन द V3 फॉर्म। इट मीन्स इसको क्या होना चाहिए, इंटरेस्टिंग नहीं, इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड। सो फर्स्ट पोर्शन में एरर है। व्हेन आई इनवर्टेडली पुट अ स्लाइस ऑफ द, जब अनजाने, इनएडवर्टेडली मीन्स अननोइंगली, अनजाने से जब एक फ्रूट का स्लाइस अपने माउथ में रखे, एक फ्रूट का टुकड़ा अपने माउथ में रखे, इट टेस्टेड सो बैडली, वो इतना खराब स्वाद दिया, बस यही, halt, come to a halt now, it just, it tasted so badly, ये इतना खराब स्वभाव, इतना खराब स्वाद दिया, this badly is adverb, ये badly क्या है, adverb है, and this adverb has been used for the word tasted which is V3। now you will say that yeah, तो ये तो भाई ये तो सही है,
क्योंकि इस वर्ड वेट बैडली का यूज हुआ है टेस्टेड वर्ब के लिए एडवर्ब यूज होता ही है, तो सेंटेंस सही होना चाहिए, बट नो, जस्ट रिमेंबर there are certain verbs that never take adverb with them. कुछ verbs हैं जो अपने साथ कभी भी adverb को नहीं देते हैं। जैसे कौन कौन सा verb है? जैसे टेस्ट, टेस्ट, feel, feel, seem, look, appear, बहुत सारा है। को इन सभी वर्ब के साथ एक्सेप्शनली अपवाद रूप से एडवर्ब नहीं बल्कि एडजेक्टिव यूज करते हैं, यानी टेस्ट के साथ एडवर्ब का यूज नहीं करते हैं, यानी ये जो ये है बैडली नहीं, इट शुड हैव बीन बैड। The error here is in the in this portion. Question number. It is crucially to obtain. Just correct it. This is misspelled. Crucially. You remove A. It is crucially. अब ये crucially this ly है, यानी इसका यूज किसके लिए हुआ है? ये एडवर्ब है, ly लगा हुआ है, ए को हटा देना, ए को हटाओ, तो crucially is this word is with ly, it, this is adverb, और इस crucially टर्म का यूज हुआ है किसके लिए? इट के लिए। इट क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन को एडवर्ब नहीं चाहिए, क्या चाहिए? एडजेक्टिव। तो इसको क्या करना होगा? एल वाई हटा दो, क्रूशियल। So in the first person, the error is in the first person. It is crucial not, it is crucial. Question number 10 says, the striking workers complained of being unjust treatment. So before we got deep into these questions, this question and its options, एक बात याद आ रहा है that we have studied 2 plus V1, ये क्या होता है? एक्टिव वॉइस। एंड बीइंग प्लस V3, ये क्या होता है? पैसिव वॉइस। जैसे टू बीट, टू टू बीट, ये एक्टिव यानी पीटना। और बीइंग बिटेन, ये एक्टिव वॉइस हुआ। बीइंग बिटेन मतलब पिटा जाना, पिटा जाना या पिटाना, यानी स्वयं पिटा जाना, स्वयं। लेकिन पीट कौन रहा है पता नहीं, इट मीन्स ये क्या काम करता है? पैसिव वॉइस का, और ये एक्टिव वॉइस का। तो बी है तो एक्टिव है। और एग्जाम्पल लो, ये हम लोग पढ़े थे। अब जैसे डिफीट, टू डिफीट मीन्स हराना, यानी एक्टिव वॉइस, ये एक्टिव वॉइस है। और वही बीइंग डिफीटेड, ये क्या होता है? पैसिव वॉइस। इन डिटेल वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास। ये बीइंग डिफीटेड मीन्स अब हराना नहीं, हार जाना, स्वयं हार जाना, स्वयं हार जाना, हार जाना। तो बीइंग विजरी पैसिव वॉइस का काम करता है। अब इधर आओ, नाउ कम टू द क्वेश्चन। द क्वेश्चन हियर इज द स्ट्राइकिंग वर्कर्स, द स्ट्राइकिंग वर्कर्स, ये स्ट्राइक करता हुआ वर्कर्स कंप्लेन किया, किस चीज का? कंप्लेन ऑफ बीइंग अनजस्ट ट्रीटमेंट। स्ट्राइकिंग वर्कर्स, स्ट्राइक करता हुआ वर्कर्स कंप्लेन किया, किस चीज का कंप्लेन किया? अन्यायपूर्ण रूप से व्यवहार करने का कि किए जाने का?
भाई स्ट्राइक कर रहा है वर्कर्स, कंप्लेन कर रहा है वर्कर्स, तो किस चीज के लिए कंप्लेन करेगा? कि इन लोगों के साथ अन्याय रूप से व्यवहार किया जा रहा है। यानी कर कौन रहा है व्यवहार, ये पता नहीं है। यानी आपको पैसिव चाहिए, यानी भाई बीइंग लगा हुआ है, बीइंग प्लस बी थ्री, तो बीइंग चाहिए, यानी बीइंग तो है बट बी थ्री रॉन्ग, यानी कि दिस ऑप्शन इज, ये तो सेंटेंस, दिस सेंटेंस रिक्वायर्स इंप्रूवमेंट, तो गलत। तो क्या करें? बीइंग बीइंग ट्रीटेड अनजस्ट, यस, बीइंग ट्रीटेड, व्यवहार किए जाने के लिए, ये तो मैसेज दे रहा है। लेकिन व्हाट इज इट, दिस अनजस्ट, इस अनजस्ट का यूज किसके लिए हो रहा है? ट्रीटेड के लिए। अन्याय क्या, अन्याय क्या, व्यवहार किए जाने का, यानी कि अनजस्ट का यूज हो रहा है व्यवहार करना यानी ट्रीट के लिए। ट्रीट क्या है? वर्ब है, और वर्ब को क्या चाहिए? एडवर्ब। एडवर्ब के लिए क्या चाहिए? एल वाई लगना चाहिए, यानी अनजस्टली होना चाहिए, जो कि अभी है नहीं। इट मीन्स one thing is quite obvious, that option 1 is wrong. Now, unjustly treated, तो unjust, this is, ये वर्ब है, तो वर्ब है वी, और वी के साथ वर्ब के लिए एडवर्ब का यूज हुआ है, ये भी ठीक है। बट हेयर बिंग इज मिसिंग, बिंग गायब है। बिंग तो चाहिए ना, क्योंकि पैसिव वॉइस चाहिए। व्यवहार कर कौन रहा है पता नहीं, आपको पैसिव वॉइस चाहिए, तो भाई बिंग तो चाहिए ही। हम्म, तो इसमें सेकंड ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, बिंग इज मिसिंग, बिंग गायब है, ये भी खत्म। नाउ क्वेश्चन, बिंग जस्टली ट्रीटेड, तो ये क्या है? बिंग जस्टली ट्रीटेड, ये जो है जस्टली ट्रीटेड, वो तो कंप्लेन, जस्ट का मतलब न्यायपूर्ण। अरे भाई, जब न्यायपूर्ण व्यवहार किया जाएगा तो वो कंप्लेन क्यों करेंगे, स्ट्राइक क्यों करेंगे? तो सो फार एज ग्रामर पोर्शन इज कंसर्न, ये है वी थ्री, वी थ्री के पहले, वी थ्री के लिए एडवर्ब यूज हो गया है, ये भी ठीक है। बिंग भी दिया हुआ है पैसिव वॉइस, ये बिल्कुल ठीक है। बट दिस सी ऑप्शन मेक्स द सेंटेंस सेंसलेस, क्योंकि जस्टली मतलब न्यायपूर्ण तरीके से। तो भाई, स्ट्राइकिंग वर्कर्स कंप्लेन किए न्यायपूर्ण तरीके से सलूक किए जाने का। जब न्यायपूर्ण तरीके से सलूक किया जाएगा तो काहे का वो स्ट्राइक करेंगे, कंप्लेन करेंगे? बट दिस, ग्रामर के तरीके से ये तो सही है, इट सेटिस्फाइज all the rules of grammar, but makes the sentence meaningless because of justly. Now, this is also not a correct answer. तो अब क्या होगा? Now, being unjustly treated, V3 ठीक है, उसके साथ adverb ठीक है, and being passive voice, this is the correct answer. Striking workers अन्याय रूप से व्यवहार कर किए जाने के लिए कंप्लेन किए। It means D is the correct answer. D1, D1 is the correct option. And it had question number 11. Dust particles that are accumulated on the window panes are harmful to health. No error. Now, now we have to see to it where the error is. Now second portions को जरा देखें. This is accumulate. Accumulate means इकट्ठा करना, and this is V1, verb 1. नाउ सबसे पहली बात तो इज एम आर इनके बाद V1 तो आ नहीं सकता है। अगर ये एक्टिव वॉइस होता तो आर एक्यूमुलेटिंग होता, पैसिव होता तो आर एक्यूमुलेटेड होता। सो ये ना तो एक्टिव है ना पैसिव है, तो ये तो गलत है ही। और दूसरे तरीके से ये सोचे, लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। ये क्या कहना चाह रहा है? डस्ट पार्टिकल्स दैट आर एक्यूमुलेट ऑन द विंडो पिन्स, यानी डस्ट का पार्टिकल्स जो विंडो पिन्स मीन्स खिड़की के शीशे, खिड़की का शीशा जो खिड़की के शीशे पर इकट्ठा है, एकत्रित है, जमा है, आर हार्मफुल टू हेल्थ, वो हेल्थ के लिए
हानिकारक है। अब ये जो टर्म है एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट, सोचिए ये अभी है V1 और इस वर्ब का अभी क्या रोल होना चाहिए सेंटेंस में? 10 पार्टिकल्स जो खिड़की के शीशे पर एकत्रित है, इकट्ठा है। यानी ये टर्म एक्यूमुलेट, इट हैज बीन यूज्ड टू शो द कंडीशन, स्टेट ऑफ द पार्टिकल्स। और पार्टिकल्स क्या है? नाउन है। ये नाउन की अवस्था को बता रहा है कि कैसा भाई, ये कैसा पार्टिकल्स तो है लेकिन कैसा? एकत्रित है। किस अवस्था में है? एकत्रित होने की अवस्था में एकत्रित है। तो एक्यूमुलेट क्या है? पार्टिकल्स नाउन की अवस्था बता रहा है। V1 तो कंडीशन बता नहीं सकता है। तो इसके लिए दिस एक्यूमुलेट हैज गॉट टू बी एन एडजेक्टिव। इसको एडजेक्टिव होना पड़ेगा क्योंकि ये नाउन की यानी पार्टिकल्स की अवस्था को बता रहा है। एंड वी हैव स्टडीड एंड डिस्कस्ड इन लेंथ की जो कंडीशन बताता है नाउन को, नाउन की जो कंडीशन बताता है उसको एडजेक्टिव कहते हैं। सेम टाइम वी हैव आल्सो लर्न कि V3 का यूज एडजेक्टिव के तौर पर किया जाता है। एडजेक्टिव मीन्स किसी भी नाउन या प्रोनाउन की कंडीशन को बताए, फिजिकल और मेंटल कंडीशन को। तो इसको कंडीशन बताना है पार्टिकल्स की अवस्था, यानी इसको एडजेक्टिव होना चाहिए और एडजेक्टिव के लिए V3 होना चाहिए। यानी इस वर्ड को क्या होना चाहिए? एक्यूमुलेट नहीं, एक्यूमुलेटेड। इसको V3 फॉर्म में रखना होगा। क्या करेंगे? एक्यूमुलेटेड, एक्यूमुलेटेड, एक्यूमुलेटेड इसको होना चाहिए। सो दिस इज the error is in the second person. Now come to the question number 12. Question number 12 says a woman in that house treated that child stepmotherly, so she was condemned and criticized by the neighbors. कह रहा है कि एक महिला है, उस घर में एक महिला है जो इस बच्चे के साथ स्टेप मदरली व्यवहार की, स्टेप मदरली व्यवहार की। नाउ दिस स्टेप मदरली, ये स्टेप मदरली है। अब पहले तो ये जाने स्टेप मदरली वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि द वर्ड्स दैट एंड विद एल वाई, जो शब्द एल वाई से इंड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम्स देयर आर अ फ्यू एक्सेप्शंस, कुछ एक्सेप्शंस है। बहुत सारा शब्द है जो इस एल वाई से इंड तो होता है लेकिन वो एडवर्ब नहीं बल्कि एडजेक्टिव होता है। जैसे कुछ की बातें हम लोग किए थे, जैसे मैनली, एल वाई से मैनली, मैनली, वोमैनली, वोमैनली, लवली, सब एल वाई से इंट हो रहा है। वो सारा वीडियो में है, वो देख लेना उसको। उसी में था स्टेप मदरली, स्टेप मदरली। ये क्या है? इन द सेम वे स्टेप मदरली, इसमें एल वाई तो लगा हुआ है लेकिन ये क्या? ये एडजेक्टिव है। और यहाँ पर किसके लिए यूज किया जा रहा है? यहाँ पर किया जा रहा है ट्रीटेड के लिए। दिस स्टेप मेजरली वर्ड इज बीइंग यूज्ड फॉर ट्रीटेड। ट्रीटेड इज वर्ब, वर्ब। और वर्ब के लिए एडजेक्टिव का यूज नहीं कर सकते हैं, एडजेक्टिव का यूज वर्ब के लिए नहीं किया जा सकता है। सो इन दिस पोर्शन द सेकेंड पोर्शन रॉन्ग। तो अब इसको करेक्ट कैसे करना है? अगर करेक्ट करना होगा तो we should write like this: in a step motherly manner, ऐसे लिखना होगा। ऐसे लिखने की वजह ये क्या है? दिस वन इज एडजेक्टिव। ऐसे लिखने से अब इस स्टेप मदरली का यूज किसके लिए होने लगा? मैनर के लिए। मैनर एक नाउन है तो नाउन के लिए एडजेक्टिव ये आ जाएगा स्टेप मदरली and the sentence will be correct. So error is in the second person, not a step motherly, in a step motherly manner. Now question number 13.
you can take any of these pens that are keeping on the table. Try to understand what it says. It says कि these pens that are keeping, तुम कोई भी कलम ले सकते हो, that are keeping on the table, जो टेबल पर रख रहा है, जो टेबल पर रख रहा है, दिस इज B4, तो जो टेबल पर रख रहा है, जबकि इसका सही एक्सप्रेशन, वे ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, तुम कोई भी पेन ले सकते हो जो टेबल पर रखा हुआ है। तो ये कीपिंग जो है, अगर यूज करते हैं तो इज एम आर के बाद कीपिंग यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एक्टिव वॉइस हो जाएगा। तो जो वो सारी पेन्स जो रख रहा है, तो ये पेन तो रखने का काम नहीं कर सकता है। हाँ, ये है जो टेबल पर रखा हुआ है। सो यहाँ पे कीपिंग शुड नॉट बी यूज, वी शुड यूज we should use V3, kept, kept, V3, the verb third for V3 form of keep. इससे क्या होगा, ये पेन की स्थिति बताने लगेगा, और एडजेक्ट V3 एडजेक्टिव का काम करता है, इसलिए यहाँ पे V3. So this portion needs to be corrected. Keeping नहीं, kept. Look at the question number 15. They were so much impressed with the womanly virtues like compassion, sacrifice, etc. of Mrs. Mathur that they decided to donate a sum of rupees 10 lakh for the orphanage run by her unhesitatingly. No error. Now, look at this section of this second portion of the sentence. Virtues means good qualities. This is noun. Virtues, ये क्या है? Noun है. अब यहाँ पर womanly term लगा हुआ है. Since the word ends with ly, so we can mistake it for adverb. हम लोग इसको adverb समझ सकते हैं क्योंकि इसमें ly लगा हुआ है. But we have already studied कि कुछ शब्द है जो ly से तो end होता है. Some of the words are there that end with ly. कुछ शब्द है जो ly से समाप्त होता है, लेकिन वो adverb नहीं, क्या होता है? Adjective होता है. वो शब्द कौन कौन सा है? वी हैव डिस्कस्ड मैनली, वोमैनली, मदरली, नेबरली, कोवार्डली, ये सारा का वीकली, मंथली, लवली, ये सारा शब्द एलवाई से तो इंड होता है, लेकिन वो एडवर्ब नहीं, एडजेक्टिव होता है. सो दिस वोमैनली वर्ड उसी में से, उन्हीं सारे वर्ड्स में से एक है जो कि एडजेक्टिव है. अब इसका ही वुमेनली का यूज हुआ है वर्चूज के लिए. वर्चूज नाउन है, नाउन के लिए एडजेक्टिव यूज होता ही है. सो नो एरर. सो इन दिस वे कुछ क्वेश्चंस था that we have solved and I have tried to explain them. I am sure these points will help you a lot. May you have a stupendous and splendid success in the days to come.